this one, we are going to discuss the further question of study material, and that relates to the chapter, that is chapter number 6, that is nothing but the completion and review. So in this one, we are reading test your understanding question number 1. Reading question is equally important as important as reading the concept. So let's get started. All right. So test your understanding question number 1. Move Fast Limited is engaged in the manufacturing of shoe and slippers located in Bahadurgarh in Haryana. Move Fast Limited जो है that the same is वो engaged है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज को मैन्युफैक्चर करने में एंड स्लीपर्स जो कि लोकेटेड है इन बहादुरगढ़ इन हरियाणा. Due to unprecedented rains in the area in the month of September 2022, many areas of the town got inundated due to the choking of sewer system. As a result of the above, the company's premises located in town were also affected, resulting in damage of stocks. The company has lodged a claim with the insurance company for rupees 1 crore, and the same is shown as a claim receivable as of 31st March 2023, as the claim was not settled at the year end. The insurer surveyor appointed in a case submitted a report to the insurance company recommending a claim of rupees 45 lakh in the month of April 2023. The company has also given its consent for the same and settled the amount of rupees 45 lakh was transferred to the bank account of the company on 15th May 2023. You have just finished performing the substantive procedure of the company by the end of May 2023. Is there any responsibility cast upon you as the auditor of the company in the above situation? तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स आ रही है और सीवर ये सब चौक हो गया, ये सब तो ठीक है. उसके बाद कंपनी ने एज अ रिजल्ट इतना सारा डैमेज हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कंपनी ने बोला है कि उसे इंश्योरेंस चाहिए, 1 करोड़ वाला क्लेम चाहिए, एंड द सेम इज शोन एज रिसीवेबल. 31st March 2023 को ये रिसीवेबल की तरह शो हो रहा था, एज द क्लेम वाज नॉट सेटल्ड एट द ईयर एंड तक ये सेटल नहीं हुआ था. रेन वेन कब आई? ये सारी रेन आई थी सितंबर 2022 में, और 31st March 2023 तक भी हमारा क्लेम रिसीवेबल शो हो रहा था. इंश्योरेंस सर्वेयर अपॉइंटेड इन द केस सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी रिकमेंडिंग अ क्लेम ऑफ रुपीज 45 lakh in the month of. The insurance surveyor appointed in the case submitted a report to the insurance recommending a claim of 45 lakh in the month of April. यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट्स विच जो कि जिसका अकरेंस हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट. बेसिकली उसका अकरेंस जरूर ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चलता है ऑडिटर को. द कंपनी हैज आल्सो गिवन इट्स कंसेंट इन द सेम एंड सेटल द अमाउंट ऑफ 45 लाख वाज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी. को मिल गया है 15th May 2023. मतलब जो एग्जिस्ट तो कर रहे थे और अकरेंस जो है ये सारी चीजें. तो एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, हम इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वही रीड करेंगे, अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म करना है हमें. करेंटली वी आर स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल, वी नीड टू ड्राफ्ट द आंसर व्हाट आईसीए वांट अस टू draft in that way. You have just finished performing the substantive procedure of the company by the end of May 2023. Is there any responsibility cast upon you as the auditor of the company in the above situations? तो हम आईसीआई में हमें किस तरीके से लिखने को बोला है हम वैसे ही देखते हैं. इसका आंसर करेंटली तो मेरे पास है, तो एक काम करती हूँ, एक बार मैं अपनी बुक से रीड करती हूँ ताकि क्वेश्चन मेरे फ्रंट में रहे, बिकॉज क्वेश्चन अलग जगह है एंड आंसर अलग जगह है. तब फिर क्या करूँ? ओके, मैं क्वेश्चन आंसर पे ले जाती हूँ. ये है 6.25. अब यहाँ पेज नंबर कैसा है? ओके, तो इस गिवन सिचुएशन में प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, दिस इज ट्रू.
The given situation provides evidence of conditions. हम क्या बोलते हैं, ये जो given situation है ये provide करी evidence of condition की evidence जो कि exist करती थी at the date of financial statement. Initially, the company has lodged a claim of rupees 1 crore and the same is reflected as claim receivable in the financial statement as on 31st March 2023. तो given situation जो है वो evidence provide करी, हम क्या बोलते हैं, given situation जो है, गिवन सिचुएशन जो है वो एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कंडीशंस का जो कि एग्जिस्ट करती है एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एग्जिस्ट करती है एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इनिशियली द कंपनी हैड लूज द क्लेम ऑफ रुपीज 1 करोड़. इनिशियली कंपनी ने लूज किया है क्लेम 1 करोड़ का एंड द सेम इज रिफ्लेक्टेड एज क्लेम रिसीवेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑफ 31st मार्च 2023. और सेम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एज व्हाट, एज द क्लेम रिसीवेबल की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023. However, subsequent events occurring have provided the evidence that claim was settled for. तो कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी. तो ये जो गिवन सिचुएशन है वो प्रोवाइड करी हमें एविडेंस की कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि हमारे पास क्लेम रिसीवेबल था एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी. उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से हमें हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट द क्लेम वाज सेटल्ड फॉर 45 lakh only. Such a settled amount has already been accepted by the company by providing its consent. Therefore, such events have provided the fresh information about the items included in the financial statement. उसके बाद हम बोल रहे तो फर्दर पहले तो हम बोल रहे कि बैलेंस शीट पे यस एग्जिस्ट कर रही थी बिकॉज वी हैव द क्लेम रिसीवेबल ऑफ द एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा था 1 करोड़ का. उसके बाद हावेवर सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो अकर हुए है, उसने प्रोवाइड किया एविडेंस कि जो क्लेम है वो सेटल होगा, सेटल हो गया है फॉर रुपीज 45 लाख का ही हुआ है. such amounts such a settled amount has already been accepted. और ये जो settled amount है वो already been accepted by the company by providing its consent. Therefore, such events have provided fresh information about the items included. तो फिर क्या हुआ, ये जो event है वो provide कर रहा है fresh information about the items included in the financial statement. Further performance of substantive procedure has been finished, implying that audit report is not yet issued. उसके बाद फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, फिर क्या हुआ, फर्दर परफॉर्मेंस हुई, सब्सटैंटिव प्रोसीजर हैज बीन फिनिश्ड इम्प्लाइंग दैट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट येट इशू, कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अभी तक इशू नहीं है. वो इवेंट जो कि होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर द इशू ऑफ द, हम बोलते हैं ना कि ऑडिटर को पता चल गई है वो सारी बातें बिफोर द इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट येट इशू, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं हुई है. Therefore, financial statement as of 31st March 2023 should be adjusted. ये adjust होनी चाहिए ताकि वो reflect करे fresh information emanating from described event, and management should be asked to take appropriate action in this regard so that adjustment pertaining to above is properly reflect हो पाए in the financial statement in accordance with applicable financial reporting framework के according. तो इसमें ऐसे बुलेट पॉइंट्स नहीं दे रखे कि हमें बुलेट पॉइंट्स दे रखे और हम उसे इजीली और एग्जैक्ट लर्न कर ले, ऐसा नहीं दे रखा है. तो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए सो दैट वी कैन ड्राफ्ट आवर आंसर सिमिलर टू इंस्टीट्यूट. क्योंकि इस आंसर को पर्टिकुलरली वी कैन नॉट रिटेन एज इट इज बिकॉज देयर इज नॉट द बुलेटिन पॉइंट इन दिस आंसर. हाउ कैन वी रिटेन द एग्जैक्ट आंसर? वी कैन ड्राफ्ट some summary from this that there is a condition which exists as on the financial statement that is amounting rupees 1 crore. We can draft what we have asked in the question कि exactly starting में बता रखा है कि balance sheet date पे we have the claim receivable, तो we underline the same line that हमारे पास क्लेम रिसीवेबल है, यस द कंडीशन इज एग्जिस्टिंग. फर्दर हमें एविडेंस मिला है कि हमारे कंपनी को 45 लाख रुपीस रिसीव हो गए. So we can add the next line or we can add it to our answer कि yes there is the further information which वो और उसे बताती है कि 45 लाख रुपीस हमें मिले हैं. उसके बाद ये जो इवेंट्स है वो बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुआ है. तो ये हम रेफरेंस दे सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स का और बाकी क्वेश्चन से कुछ लाइन पिक करके हम अपने आंसर में इंसर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम उसे एज इट इज रट्टा मार लें फॉर अवर पेपर. ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस आंसर.
रेस्ट प्लीज गाइड। उसके बाद नेक्स्ट कम दैट इज द टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2। That is also on, this is on page number 5 of our dearest institute material, and that is also relating to subsequent event. So what sort of questions can be formed on a particular topic that we are recalling? कितना भी पढ़ ले content तो कम ही पड़ेगा, but to the extent we can do with the help of institute material, वो हम we are trying here. सी अनुज जो है that the same as the auditor है of the listed company, and he is in the midst of conducting an audit of the said company for the financial year ending 31st March 2023 at a meeting of the board of director held on meeting हुई है 17th April 2023। मतलब कि 31st मार्च 2023 के हमें ईयर एंड यानी कि 22-23 की ऑडिट करनी है, और एक बोर्ड मीटिंग हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है वो 2020-23 की कर रहा है। उसके बाद ये जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो हो रही है 17 अप्रैल 2023 को हो रही है। डिविडेंड ऑफ ₹1 करोड़ प्रपोज किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर एट ₹10 पर शेयर, एंड सच अ प्रपोजल हैज अ गुड चांस ऑफ बीइंग अप्रूव्ड, और ऐसा माना जा रहा है कि वो अप्रूव हो जाएगी इन द एजीएम टू बी हेल्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स में, जो एजीएम होगी उसमें अप्रूव हो जाएगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वी कैन से। तो his audit procedure are near completion, अब उसकी audit procedure near completion में है। He's contemplating finalize the audit report वो 31 जुलाई तक पूरा वो कर लेगा। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हो रहा है और ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो रहा है, बिकॉज जो मीटिंग हो रही है वो 17 अप्रैल को हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चीजें है ऑलमोस्ट अप्रूव हो जाएगा इन द एजीएम में, जो कि मेंबर्स से अप्रूव हो जाएगा एंड ऑल सच थिंग। तो his audit procedure are near completion, he is contemplating finalizing the audit report, फाइनलाइज करेगा वो 31st, मतलब कि ये इवेंट जो है इसके बीच में हो रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रिंसिपल ये है, इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट बिफोर इशूइंग द फाइनेंशियल, बिफोर द ऑडिटर इशू द ऑडिट रिपोर्ट, और वी कैन से इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो भी है। Is there any possibility thrust upon him auditor of the company? तो यहाँ पे ऑडिटर का क्या रोल आ जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा पेज नंबर आएगा, देन अगेन हमारा पेज नंबर आ जाएगा, दैट इज that will be 6.25 25 पेज। Question number 2. In the given situation, dividend has been proposed by board of director on 17th April 2023. Given situation में हमें ये बोला जा रहा है कि जो डिविडेंड जो है वो प्रपोज कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे प्रपोज कर चुके हैं, बस एजीएम में उसे बताना है। तो इन द गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डिविडेंड हैज बीन प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 17 अप्रैल 2023। डिविडेंड जो है वो प्रपोज हो चुका है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा on 17th April 2023. It is an example of condition that arose after the reporting period. ये एग्जाम्पल है जो कि अरोज हुआ है, we can say arise arose, and so this is the second form. Arose हो चुका है after the reporting period. No liability exists for the company on reporting date. कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है कंपनी की रिपोर्टिंग डेट, बिकॉज देर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे एट द रिपोर्टिंग डेट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इन अकॉर्डेंस विद इन डेज 1 के अकॉर्डिंग, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने का। Therefore, above situation does not require recognition of above proposed dividend in the financial statement. तो हम बोल रहे हैं कि अबाउ सिचुएशन डज नॉट रिक्वायर, हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है प्रपोज डिविडेंड को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ये एग्जांपल है उन इवेंट का जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हाउएवर इट शुड बी डिस्क्लोज, बट हमें इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट हमें इसका डिस्क्लोजर देना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमें इसका डिस्क्लोजर देना होगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें इसका डिस्क्लोजर देना होगा
Therefore, it should be ensured that it is disclosed in the notes to accounts in the financial statement. इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए इन द नोट्स टू अकाउंट. डिस्क्लोजर देना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर देना है हमें नोट्स टू अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ही शुड वेरीफाई इन अकॉर्डेंस विद SA 560 दैट इज टू डिस्क्लोज इन. उससे इसका क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. ये ऐसा इवेंट है जो कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर रहा है, बट at the same time we need to disclose the same in the financial statement, in the notes to the account for this proposed dividend and all. तो in the given situation, और हमें एक और पॉइंट जो यहाँ पे डील करना है, इंडेस 1. इंडेस 1 बोलता है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे रिपोर्टिंग डेट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एट द रिपोर्टिंग डेट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 1 के अकॉर्डिंग. हमें इंडेस का रेफरेंस देना है, हमें ये बताना है कि इसका डिस्क्लोजर करना है इन दी नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वी आर अगेन रिपीटिंग दिस questions answer. Alright, so in the given situation, dividend has been proposed by the board of director. Dividend को गिवन सिचुएशन में डिविडेंड को प्रपोज किया गया है गिवन सिचुएशन में डिविडेंड को प्रपोज किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑन 17 अप्रैल 2023, यानी कि आफ्टर द डेट ऑफ, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी हमारी बैलेंस शीट डेट पे. बैलेंस शीट डेट के बाद पे बोला जा रहा है कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 को. और ये एक ऐसा एग्जांपल है जिस कंडीशन अरोज हो रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड, ये कंडीशन जो है दैट द सेम इज अरोज. कंडीशन जो है वो अरोज कर रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद. हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन जो है वो अरोज कर रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है कंपनी की ऑन रिपोर्टिंग डेट, बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे एट द रिपोर्टिंग डेट. क्योंकि कोई कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की एट द रिपोर्टिंग डेट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 1. Therefore, above situation does not require recognition of above proposed dividend in financial statement. तो अबाउ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ अबाउ प्रपोज्ड डिविडेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक एग्जांपल है ऑफ इवेंट्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. हाउएवर इट शुड बी डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट. देयरफॉर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इट इज डिस्क्लोज किया है नोट्स टू अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी शुड वेरीफाई इन अकॉर्डेंस विद SA 560 दैट इट इज सो डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट. ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है. फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद फर्दर और एविडेंस मिल रहा है, एडजस्टमेंट की जरूरत है, और तो ऑलमोस्ट यही था उसमें, एडजस्टमेंट की जरूरत है एंड बस उसमें भी इतना ही था. और इसमें ये है कि रिपोर्टिंग डेट की चीजें बाद में हो रही है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है बट डिस्क्लोजर की जरूरत है. इंडेक्स 1 बोलता है कि इट इज हैपन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बट हमें एट द सेम टाइम वी नीड टू डिस्क्लोज इन द नोट्स टू कम. बस इससे ज्यादा हम इसको नहीं पढ़ सकते. अब मूविंग टू दी थर्ड, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर चलते हैं. सीए सौम्या जो है दैट द सेम इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जो कि इंगेज्ड है इन रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग्स देयर फ्रॉम. सीए सौम्या जो है दैट द सेम, सीए सौम्या इज द ऑडिटर है ऑफ द कंपनी जो कि इंगेज है इन रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग्स देयर फ्रॉम. The company has performed very well since its incorporation in 2013. Its sales had also grown and हम अभी से ये केस सिनेरियो को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं इस वाले को, बिकॉज जो क्वेश्चन हमें ड्राफ्ट करना है वो इसी के बेसिस पे करना है. ये तो हमें पता है कि ऐसे 570 के साथ डील करेगा गोइंग कंसर्न, पर किस बेसिस पे कर रहा है हमें ज्यादा प्रॉपर समझ आ जाएगा अगर हम स्टार्टिंग से इसको थोड़ा ढंग से पढ़ ले. तो सी सौम्या जो है वो एक ऑडिटर है कंपनी की जो कि इंगेज है इन द रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग्स देयर फ्रॉम. The company has performed very well. कंपनी ने जो परफॉर्म किया है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है since its incorporation in 2013, से जब वो incorporate हुई थी.
Its sales had also grown and the company had expanded its market from the native northern state of the promoter to far-flung areas in eastern parts of the country. However, since last 2 years में क्या हुआ, company fortune have nosedived. मतलब कंपनी जो है ऑलमोस्ट डूब रही है, इसका मतलब तो ये है फर्स्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक एंड देन ड्यू टू, पहले तो पेंडेमिक आ गया और उसके बाद then to the recurrent outbreaks of bird flu thrice in a span of 2 years. The company's sales have dipped from around rupees 50 crore to rupees 10 crore. Further, a major part of its livestock was also wiped off during the bird flu. She is not optimistic about the going concern assumption followed by the management. The management now wants to start with new batches of birds. Management चाहता है कि वो start करे with new batches of birds. The earlier working capital facility of the company granted by bank have also been restructured to support the business. She was informed that the repayment of restructured working capital term loan are to begin from ensuing year. No fresh credit facility have been granted by the bank. The company also planned longer credits from animal feed suppliers. The company plans to take additional measures to prevent the safety of livestock, including aggressive vaccination, preventive health checkups, and more frequent visit of veterinary staffs. The villagers in surrounding area have accused the company of spreading air pollution. The management has prepared a cash flow forecast for her examination. Discuss the approach to be adopted by her in examining the going concern assumption, keeping in view about the specific reference to cash flow forecast. काफी ज्यादा बड़ी मतलब क्या ही बोले हम, एक एक पेज के तो क्वेश्चंस हैं। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे और डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। In accordance with SA 570, that is the going concern. In accordance with SA 570, going concern ये बोलता है if events or condition have been identified, that अगर ऐसे events और condition अगर आपने identify कर लिए हैं जो कि that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, जो कि कास्ट करते हैं significant doubt on the entity की ability पे to continue as a going concern, तो ऑडिटर shall obtain, ऑडिटर को obtain करना पड़ेगा sufficient appropriate audit evidence ताकि वो determine करेगी whether or not a material uncertainty exists करती है क्या related to events or conditions, relating to what, relating to events or conditions जो कि that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern by performing additional audit procedures, including the consideration of mitigating factors. In accordance with SA 570 going concern, in accordance with SA 570 going concern ये बोलता है if events or condition have been identified, अगर events और condition को identify कर दिया जाए that may cast significant doubt, जो कि significant doubt लाता है about the entity's ability, क्या entity की ability है, क्या उसमें इतनी क्षमता है to continue as a going concern की तरह continue कर पाएगी या नहीं। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो ये डिटरमाइन कर पाए वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या, करें इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज, क्या एंटिटी की एबिलिटी पे आपको डाउट हो रहा है क्या टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न by performing additional audit procedures, including the consideration of mitigating factors. Where the entity has prepared a cash flow forecast, and analysis of forecast is a significant factor in considering the future outcome of events or condition in the evaluation of management plans for future action. It includes, तो उसमें क्या include किया जाता है, evaluating the reliability of underlying data generated to prepare the forecast, and आपको evaluate करना है, आपको क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना होगा दैट व्हाट विल बी द रिलायबिलिटी क्या होगी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा जो भी जनरेट किया जा रहा है टू प्रिपेयर द फोरकास्ट को प्रिपेयर करने के लिए। डिटरमाइन करना है क्या देयर इज एडिक्वेट सपोर्ट है क्या फॉर द अजम्पशन अंडरलाइंग द फोरकास्ट। अबाउट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हमें अब पॉइंटर्स में आंसर है।
In the above situation, cash flow forecasts have been prepared किया गया था मैनेजमेंट के द्वारा. Therefore, she should carefully evaluate the assumption underlying the forecast and also reliability of data to prepare the forecast. For example, she should verify the assumption regarding fresh batch of livestock. She should उसे verify करना चाहिए assumption जो भी है regarding the fresh batch क्या है livestock का. The banker have not provided the fresh credit facility. ये मतलब बता रही है event से हमें doubt arise हो रहा है, significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. She should verify the assumption regarding the fresh batch of livestock. The bankers have not provided fresh credit facility. How funds from the same would be arranged. The reasonability of assumption in cash flow forecast need to be looked into. She need to check loan sanction letters, agreement to verify when repayments are beginning to see their accuracy in cash flow forecast. The company plans to avail longer credit from animal feed supplier. In the downturn situation of the company, how would supplier extend longer credits? क्या वो longer credits दे देंगे suppliers? This is going to affect on the cash flow forecast में दिक्कत आने वाली है. Whether the company has accounted, क्या कंपनी ने अकाउंट किया है क्या for increased expenditure on preventive health checkup, vaccination and more frequent visit of veterinary staff in the cash flow forecast. Since villagers have accused the company of spreading air pollution, how does the company plan to deal with the same? Whether any proposed expenditure in this regard is accounted for in the cash flow statement, she may also consider other implication of this issue and possible effect on the cash flows. Alright, तो हमने ये पढ़ा है, but हमें ऐसे इतना समझ नहीं आया है. Be honest with yourself. नहीं समझ आया तो we need to read it again because एग्जाम में तो कुछ से लिखना पड़ेगा. इन अकॉर्डेंस विद, अब हम इसे धीरे से पढ़ लेते हैं दोबारा से. क्वेश्चन तो समझ आ गया है कि हाँ गोइंग कंसर्न है, सारी चीजें डाउन जा रही है, डाउट है हमें कोविड की वजह से भी, पहले सब सही चल रहा था, उसके बाद जो बर्ड फ्लू है उसकी वजह से भी, और जो भी क्वेश्चन में दिया था. अब हम आंसर रीड करने की कोशिश करते हैं. इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, अगर कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई की जाए जो कि मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट रेज करेगी ऑन द एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ऑडिटर शेल ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो ये डिटरमाइन कर पाए वेदर और नॉट क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि रिलेटेड है इवेंट्स और कंडीशंस से, जो कि डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट अराइज करेगी ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स. Where the entity has prepared a cash flow forecast, an analysis of forecast is a significant factor in determining the future outcome of the events or condition in the evaluation of management plan for future action. It includes where the entity has prepared a cash flow forecast, जहां पे where the entity has prepare किया हो cash flow forecast, an analysis of forecast जो है वो significant factor हो. Where the entity has prepared a cash flow forecast, हम क्या बोल रहे हैं where the entity has prepared, जहां entity ने prepare किया हो cash flow forecast, an analysis of forecast जो है वो significant factor हो in determining the future outcome of events or condition in the evaluation of management plans for future action. तो वो इंक्लूड करेगा क्या इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा. इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा जो भी जनरेट हुआ है टू प्रिपेयर द फोरकास्ट को प्रिपेयर करने के लिए. हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा. हम क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ दी, व्हाट इज द रिलायबिलिटी क्या है अंडरलाइंग डेटा की जो भी जनरेट हुए हैं टू प्रिपेयर द फोरकास्ट. डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे क्या कोई एडिक्वेट सपोर्ट हुए फॉर द अजम्पशन अंडरलाइंग द, क्या एडिक्वेट सपोर्ट है फॉर अजम्पशन अंडरलाइंग द फोरकास्ट. इन द गिवन सिचुएशन कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर किया मैनेजमेंट, देयरफॉर शी शुड केयरफुली इवेल्युएट करे इज अजम्पशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. She should verify करे assumption regarding the fresh batch of livestock. फिर हमें सारी सिचुएशन को क्वेश्चंस में से निकालना है कि बैंकर जो है फ्रेश क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो कैसे फंड्स अरेंज होगा, सप्लायर्स है जो वो एक्स्ट्रा लॉन्गर क्रेडिट नहीं देंगे, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वैक्सीनेशन, वेदर कंपनी क्या वैक्सीनेशन पे इतना एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर कर पाएगी क्या, वेटरनरी स्टाफ को हायर कर पाएगी क्या,
तो हमें कुल मिला के जो हमने पढ़ा है उसी में से ही लिखना है, उसी में से लिखना है। ऐसे 570 की जो इम्पोर्टेंट लाइंस होगी वो लिखनी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने ये सीखा है कि हमें क्वेश्चंस के अंदर जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो कि गोइंग कंसर्न से रिलेट करते हैं, कि वो फंड कैसे अरेंज करेंगी, बैंक जो है वो कम क्रेडिट दे रहा है, सप्लायर लॉन्गर क्रेडिट नहीं देगा, वेटरनरी स्टाफ्स को हायर कर सकते हैं क्या क्योंकि बर्ड फ्लू हो रहा है एंड ऑल, और कैसे हम इन चीजों से डील करेंगे। और एयर पोल्यूशन, सिंस विलेजर्स हैव एक्यूज्ड द कंपनी ऑफ स्प्रेडिंग, एयर पोल्यूशन फैला रही है, तो क्या हम और एक्सपेंडिचर कर पाएंगे क्या, whether any proposed expenditure in this regard is accounted for in the cash flow statement. She may also consider other implication of the issue and the possible effects on the cash flow. तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो with this we have done with our test your understanding question number 1, 2 and 3. उसके बाद 4 we need to read hereby because 5th and 6th we have already done I think. उसको हम देख लेंगे because I think 5th 6th तो हमने पढ़ लिया था in this earlier video. Day 3 वीडियो के अंदर we have already read relating to ऐसे 580 से रिलेट कर रहे थे वो दोनों, तो हमने पढ़ लिए थे। तो ऑलमोस्ट दो दो सब पे है। 580 के हमने पढ़ लिए थे, अब हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं व्हाट वी विल डू फर्दर। वन सेकंड। Just wait for 1 second. I'm back and we are here by discussing test your understanding question है that is 4 basically. CA Suraj find that जो key financial ratio है for company like current ratio, debt service coverage ratio, फोर्थ भी पढ़ चुके हैं वैसे तो, बट अब स्टार्ट कर जाए तो फिर से पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सारे एक ही में कवर हो जाएंगे। सीए सूरज फाइंड दैट जो की फाइनेंशियल रेशियो है कंपनी जैसे कि करंट रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आर इन अ रेड and have deteriorated considerably as compared to last year. The company is also not able to pay to its creditors on time. The company is requesting time and again to its banker to grant additional credit facility, but bankers are not listening. There have been significant losses here to the company due to the lack of response of the company's product in the market. As a result of it, many products are sold at a below cost price. There have been situations where the company is not able to pay the salary to the staffs on time. All these negative findings have led him to conclude that the use of going concern as a basis of accounting is not appropriate. He brings this matter to the knowledge of CFO of the company what is reporting duty cast upon him in such a scenario. The CFO informed him that the management in turn is ready to include the disclosure the inappropriateness of its use of going concern assumption of accounting. How should it impact the auditor's opinion in case of management itself discloses the inappropriateness of use of going concern assumption accounting now? So the answer is आंसर तो हमें 25 पेज पे मिलेगा इतना, इसके करना ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, but in the auditor's judgment, management use of going concern basis of accounting in the financial statement is inappropriate. The auditor shall express करेगा adverse opinion. If the financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting, अगर financial statement को prepare किया जाता है using the going concern basis of accounting, but auditor के judgment में management use of going concern basis of accounting in the financial statement inappropriate है, तो auditor जो है वो express करेगा adverse opinion.
The requirement for an auditor to express an adverse opinion applies regardless of whether or not the financial statement include disclosure of the inappropriateness of the management use of going concern basis of accounting. Therefore, if management discloses that its use of going concern assumption of accounting is inappropriate, it would have no impact on auditor's opinion. He would need to express the adverse opinion. If the financial statement, अगर financial statement को prepare किया गया है, prepared using the going concern basis of accounting, अगर उसे prepare किया गया है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट इन द ऑडिटर के जजमेंट में यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनएप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर को एक्सप्रेस करना होगा एडवर्स ओपिनियन. द रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन अप्लाई हो जाती है, उसे एडवाइस ही करनी है अगर वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दे रहा है या नहीं. इन अप्रोप्रिएटनेस, अगर मैनेजमेंट इन अप्रोप्रिएटनेस है रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑडिटर को एडवाइस ओपिनियन ही देनी है. और therefore if the management discloses that the use of, और या फिर पहले मैनेजमेंट बता दे कि गोइंग कंसर्न assumption जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, इट वुड नॉट इम्पैक्ट, ये ऑडिटर की ओपिनियन इससे नहीं बदलेगी. ऑडिटर को तो वही बताना है, इसे तो एडवाइस ओपिनियन ही बतानी है अगर इनएप्रोप्रिएटनेस यूज है ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Alright, उसके बाद फिफ्थ भी we have read in the earlier video as well, but we are revising the same. तो फ्लो को नहीं तोड़ते हैं and we can revise simultaneously. We can revise this maybe on 7th page, probably 8 पे होगा, 7 पे नहीं है तो 5th वाला करना है हमें. Following is the written representation. अब ये बहुत ज़्यादा लंबा है. कुल मिला के इसमें REES लिमिटेड जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो फर्म है मैसर्स CTK को मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है, WR दे रही, मैनेजमेंट ऑडिटर को WR दे रही है कि ऐसा ऐसा है एंड ऑल सच थिंग, तो हमें बताना है. तो इसका आंसर के लिए हम चाहते हैं 27 पे होगा. यस, तो जो डेट है ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यस, इस पे भी दो चीजें बोली जाती है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो डेट रहती है इट शुड नॉट बी लेटर देन, ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होनी चाहिए. ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद वाली डेट नहीं होनी चाहिए, और इट शुड बी प्रैक्टिकेबल नियर टू, जितना प्रैक्टिकेबल हो, जितना नियर हो, उतने जल्दी हमें मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देना चाहिए ऑडिटर को. The date of the written representation shall be as near as practicable to, but not after the date of auditor's report of the financial statement. So date है written representation की, it shall be as near as practicable to. वो कब होनी चाहिए? It should be as near as practicable to, but not after the date of auditor's report. It should not be, हम क्या बोलते हैं that it should not be ये नहीं होनी चाहिए not after the date of auditor's report on the financial statement, as the auditor is concerned with events occurring up to the date of the auditor's report that may require adjustment to or disclosure in the financial statement. The written representation are dated as near as practicable to, but not after the date of the auditor's report on the financial statement. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो डेट है ऑफ द WR की, जो डेट है ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन, इट शैल बी एज नियर एज, हम क्या बोलते हैं, इट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. बट इट शुड नॉट, नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज द ऑडिटर इज कंसर्न विद, ऑडिटर किससे कंसर्न है, इवेंट अकरिंग जो कि हुए हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट to or disclosures in the financial statement. The written representation are dated as near as practicable to, but not after the date of auditor's report on the financial statement. In the given situation, written representation is dated on 15th April 2023. The audit report is dated on 30, मतलब ये
WR जो है वो 15 अप्रैल को मिल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई को है, तो इट शुड नॉट बी आफ्टर डेट नहीं है, बिफोर डेट ही है। देयर इज अ कंसिडरेबल लैग है, जितना लैग होना चाहिए कंसिडरेबल लैग है, डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इट कुड सिग्निफाई दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर may not have been adjusted or disclosed in the financial statement by management. As the audit report is dated 31st July 2023, it reflects that the auditor has considered subsequent events occurring between the date of financial statement and the date of auditor report. However, written representation pertaining to किससे pertain करती है, that is with the 15th April 2023 से। उसके बाद हमारा आता है theoretical, 3 क्वेश्चन है तो we need to read। MCQs तो अभी करंटली कैसे पॉसिबल होगा? राशि अंडरस्टैंडिंग की तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है टोटल में 3 है, तो कैन वी रीड करंटली? तो हम ट्राई कर लेते हैं कि क्वेश्चन पे पढ़ ले साइड बाय साइड। 3 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वाले, जो जो लिखा है एटलीस्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल मेक द समरी ऑफ द वीडियो relating to essay 560, 570, 580. We will do MCQ also simultaneously one day, not today but one day definitely before examination. इतने बड़े क्वेश्चन हैं, it's very difficult to read. Ramadhan and company are the auditors of the XYZ Limited company limited. Ramadhan and company जो है these are the auditors है XYZ company limited के for the year ended on 31st March 2023. The audit report for that year was signed by the auditor. Audit report को sign कर दिया गया है कब? On 4th of May 2023 में. All right. So annual general meeting was decided to be held during the month of August 2023. मीटिंग जो है AGM की, सबसे पहले तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 पे। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो है साइन की जा रही है 4th of May 2023 में। AGM कंडक्ट हो रही है, was the annual general meeting was decided to be held during the month of August 2023 में AGM हो रही है। 6 May 2023 में the company had received a communication from the central government that an amount of 5800 crore kept pending on account of incentive, जो कि pertain करते हैं to the financial year 2022-23 से। तो एक हमें कम्युनिकेशन मिला है, ऑडिट रिपोर्ट जो है सब साइन हो चुकी है 4 मई 2023 को, बट 6 मई को एनुअल मीटिंग में AGM was decided to be held, AGM होगी अगस्त को, AGM होगी, the annual general meeting was decided to be held during the month of August 2023. 6 May 2023 में the company had received a communication, कंपनी को रिसीव हुआ कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एन अमाउंट ऑफ 5800 करोड़ कैप्ड पेंडिंग। Company had received a communication from the central government that an amount of 5800 crore kept pending on account of incentives pertaining to financial year 22-23 had been approved and the amount would be paid to the company before the end of, और हम क्या बोलते हैं, that the same had been approved and the amount would be paid to the company before the end of May 23. To a query to Chief Financial Officer of the company by the board, it was informed that this amount has not been recognized in the audited financial statement in a view of the same not being released before the close of the financial year and due to uncertainty of receipt. Now, having received the amount, the board of directors wished to include this amount in the financial statement of the company for the financial year ended on 31st March 2023. On 8th of May 2023, the board amended the accounts, approved the same, and requested the auditor to consider this event and issue a fresh report on the financial statement for the year ended. इस चीजों को कंसिडर करो, एक फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करो, एनालाइज द इशू इन्वॉल्व एंड गिव योर व्यू
whether or not the auditor could accede to the request of board of director. तो ये जो इवेंट्स है ये तो सबसे पहले तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्ड में हमें सारी चीजें बतानी है। तो हम पहले इसका आंसर पढ़ते हैं बिकॉज क्वेश्चन कुछ ज्यादा टेक्निकल सा लग रहा है। बड़ी सारी डेट्स दे रखी है, डेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखी है, डेट ऑडिट रिपोर्ट की 6 मई है, एजीएम जो होने वाली है वो अलग दिन हो रही है। 6 May 2023 को the company had received a communication from the central government that the amount of this Six May 2023 को the company had received a communication from the central government that amount of ऑडिट रिपोर्ट जो है साइन हो चुकी है 4 मई को। एनुअल जनरल मीटिंग डिसाइड हुई है कि वो होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त में। 6 मई को कंपनी को कुछ ऐसा पता चला है कि इतना इंसेंटिव्स है, कुछ है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। 31 मार्च 2023 को ईयर एंड हो चुका है। 4 मई 2023 को ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है। 6 मई यानी कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई इवेंट पता चल रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि उसको एडजस्ट करो और फिर से ये include this amount in the financial statement of the company year ended this. On 8 May 2023 को the board amended the accounts up to the same and requested the auditor कि ऐसा करो आप। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं, आप 27 पेज नंबर पे है। Now this one. Fact which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the date of financial statement are issued. ऐसे फैक्ट जो कि ऑडिटर, हम सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए क्या बोलते हैं, वो इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुए हैं बट जिसका पता उससे ऑडिट रिपोर्ट के बाद चला है, उससे हम एग्जैक्टली सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फैक्ट जिसका पता चला है known to the auditor, फैक्ट जिनका पता चला है known to the auditor after the date of auditor's report, फैक्ट जिनका पता चला है they become known to the auditor after the date of auditor's report but before the financial statement are issued. As per SA 560 subsequent event, the auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statement after the date of the auditor's report. तो ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि वो और ऑडिट प्रोसीजर करे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद। हाउएवर व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ, बट अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, अगर कोई फैक्ट पता चल जाता है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाद में इशू की जा रही है, फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट के बाद में पता चला है बट बिफोर इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of auditor's report may have caused the auditor to amend the audit report, the auditor shall, अगर उसकी वजह से that it may have caused the auditor कि वो amend कर ले audit report, तो auditor shall वो क्या करे, auditor को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, डिस्कस करना चाहिए। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए मैटर मैनेजमेंट के साथ एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। तो उस केसेस में अगर कोई ऐसा फैक्ट है, वैसे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती है ऑडिटर की अगर कोई इवेंट हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट अगर कोई फैक्ट पता चल जाए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करे, उस मैटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे, दोस चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, डिटरमाइन करे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है एंड इफ सो डिटरमाइन करे क्या वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है एंड इफ सो इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो इंक्वायर करने की कोशिश करे कि कैसे मैनेजमेंट चाहता है उस मैटर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस करना।
इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ऑडिटर shall carry out the audit procedure necessary in the circumstances of the amendment. Further, the auditor shall extend the audit procedure and provide a new auditor's report on the amended financial statement. However, the new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of the amended financial statement. बट उसकी जो डेट होगी दैट शैल नॉट बी अर्लियर, उससे पहले अर्लियर नहीं होगी देन द अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड, जब तक अप्रूवल अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल नहीं आ जाती उससे पहले की नहीं हो सकती. In the instant case, XYZ Limited Company receive an amount मिल रहा है उसे 5800 crore on account of incentive pertaining to the year 22-23 in the month of May 2023. That is after finalization of financial statement and signing of the audit report. Board of Director of XYZ Limited amended the accounts, approved the same, and requested the Ramadhan and company to consider this event and issue a fresh audit report on the financial statement for the year ended this. After applying the condition given in SA 560, Ramadhan and company can issue कर सकते हैं new audit report subject to date of audit report, which should not be earlier than the date of approval of the amended. वो कर सकता है वो कर सकता है, हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. हम क्या बोल सकते हैं कि दैट दिस कंपनी कैन इशू कर सकती है न्यू ऑडिट रिपोर्ट. दिस कंपनी कैन इशू कर सकती है द न्यू ऑडिट रिपोर्ट सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच शुड नॉट बी अर्लियर देन, वो अर्ली नहीं होना चाहिए अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑलराइट, तो ये सारा सिनेरियो है. तो क्या हम इसको दोबारा से एक बार रिकलेक्ट कर ले हमने क्या पढ़ा. तो फैक्ट विच बिकम नो टू, क्या हम एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा था वो भी पढ़ लेते हैं हम. थियोरेटिकल क्वेश्चन में 5 है, आई डोंट नो. थियोरेटिकल नहीं, हम तो हिंट वाले क्वेश्चन. आंसर टू थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल ही पढ़ रहे थे. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है हमें, तो क्या ही करे. आंसर मिल गया, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया. गॉड, क्वेश्चन आ गया. थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है बट कहाँ है. हाँ,
पैसे नहीं मिल रहा है। We are ending up.